Hey, hello everyone. This is Rajat, and in this video, I will gonna discuss the problem A gift carpet of today's Code Forces contest. So let's start with the problem statement first. Okay, so according to this problem, a gift carpet. This statement states that recently Tima and Vika celebrated their family day. Their friend Arena gave them a carpet which can be represented as n.m. That means n cross m basically of lowercase Latin letters. ठीक है? And then Vika has then the statement is that Vika has not seen the gift yet, but Tima knows what kind of carpet she likes. Vika will like the carpet if she can read her name on. She reads column by column from left to right and chooses one or zero letters from current column. Okay, so it is a state that he or she can choose one or probably zero letters from the current column. Okay, and then it states that formally the girl will like the carpet if it is possible to select four distinct column in order from left to right such that the first column contains V, the second contains I, the third contains K, and the fourth one contains A. And we have to help Tima to understand advance whether Vika will like Arena's gift or no. So okay, so basically problem is stating that we have to find VIKA in a blank in carpet. Okay, so here you can see in this first example, we can find V in first column, I in second column, K in third column, and A in fourth column. Okay, so we have to return the answer yes. Okay, and if we see in this example, bad carpet. Okay, so in this we can see that in first column there is no V, so we and second in second column there is also no V, and in third also there is no V. Okay, so we simply will return the answer no. Okay, and if we see in third case, then we can see that in first column we have V, and in second column we have I, in third we have K, and in fourth last one we have A. So we will simply return yes. Okay, so let's see with fourth test case. Okay, in fourth test case we have in first column we can easily find V, and in second column we have I. Okay, here at this position, and at third column we have not any VIK. So in third column we don't have K, but if we move to fourth column, then we can simply see that there is K. But if K is at fourth column, there is no another column, so A will not come. Okay, so the we have to return no because we don't have A. Okay, so if we see in fifth test case, in first column we find A, sorry V, and in second we don't have anything, so we just escape, and in third we have I, and in fourth we don't have anything, so we will skip, and then in fifth column we find A, and then so on, we in last column we find A. Okay, so we find VIK. Okay, so this is an interesting one, so let's take this to the notepad. I think this is enough to understand this whole question. Gift carpet. Okay, so here I will paste this picture. Okay, so let's increase this size. Okay, so in this test case, if we see that in first column, we have to find that in first column is there a V. Yes, we can see that in every row we have just V. ओके, सो मैं यहाँ पे एकदम से V लिख देता हूँ. ठीक है, और जब मैं सेकंड कॉलम में देखूंगा तो मेरे पास B है, तो उसमें क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर मेंशन था कि मैं 1 और प्रोबेबली 0 मतलब वहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास मैं 0 सेलेक्ट करूँगा, एंड देन नेक्स्ट रो पे मूव करूँगा तो इसमें मेरे पास I मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे I रख दूंगा, एंड देन यहाँ पे मूव करूँगा इस वाले कॉलम में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं 0 सेलेक्ट करूँगा, एंड देन आगे मूव करूँगा, इसमें मेरे को K मिल जाएगा,
मैं एक के सेलेक्ट करूँगा, आगे मूव करूँगा, इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मैं आगे मूव करूँगा, मेरे को इस वाली लास्ट वाले कॉलम में मेरे को ए मिल जाएगा, एंड देन मेरा जो फाइनल मेरे को चाहिए था वी का, वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अब इसकी अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। सो वी कैन अप्लाई वी कैन so we can use a greedy approach here. uh, just a second. अप्रोच। सो देखो इसमें मैंने क्या, मैंने एट ए कॉन्टेस्ट के बीच में मैंने इसमें ग्रीडी अप्रोच से करना चाहा है। ऐसे देखो, क्योंकि ग्रीडी अप्रोच अगर देखूं तो ये ज़्यादा इजी तरीके से हो भी रहा है। एक सेकेंड, देखो जस्ट इस वाले टेस्ट केस की बात करते हैं, VVIKK। ओके, सो देखो जस्ट अ सेकेंड। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे को गिवन था कि मेरे को एक N क्रॉस M का एक ब्लैंकेट गिवन है बेसिकली। सो हमें कुछ ऐसा गिवन था, VIKA, है ना। अगर मैं एक VIKA अगर मैं इसे एक ब्लैंकेट मानूं, N जिसमें N की वैल्यू 4 है एंड M की वैल्यू भी 4 है। ओके, सो बेसिकली मैं देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये मैंने एकदम इजी टेस्ट केस लिया है। इसमें बस मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं फर्स्टली मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग बनाऊँगा एक टैम्प स्ट्रिंग जिसे बोलूँगा टैम्प, इसका नाम रख देते हैं। उसमें इनिशियली वी का स्ट्रिंग को स्टोर कर लूँगा, एंड देन मैं क्या करता रहूँगा, सबसे पहला जो मेरा टास्क है ना, मैं इसे एक कैरेक्टर में स्टोर करूँगा, कैरेक्टर में। एंड देन इस वाले फर्स्ट कॉलम में पूरे में आइट्रेट करूँगा। अगर ये वी के इक्वल हुआ तो मैं इसे यहाँ से वी को कैंसिल कर दूंगा, तो जो मेरी स्ट्रिंग बचेगी वो मेरी IKA बची, और मैं इस पे से डायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या सर्च करना है, आई के लिए सर्च करना है। अब जैसे ही मैं इस पूरे के पूरे कॉलम में आइट्रेट करूँगा, जब मेरे को आई मिल जाएगा मैं यहाँ से आई को कट कर दूंगा, एंड देन यहाँ से नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर जाऊंगा। जब अब जो मेरा कैरेक्टर है वो के सर्च करना है, तो अब मैं इस पूरे कॉलम में के सर्च करूंगा, एंड देन अगर मिला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे के मिल रहा है तो मैं इसे कट करूंगा, एंड देन यहाँ पे आगे मूव कर जाऊंगा। क्योंकि अब मेरे को ए सर्च करना है, मैं इस कॉलम में ए सर्च करूंगा, एंड ए मिला तो इसे कट करूंगा, एंड देन आगे मूव कर जाऊंगा। अब फाइनली क्या हुआ, जो मेरी टैम्प स्ट्रिंग है वो मेरी कुछ ऐसी बचेगी, क्योंकि उसमें से मैंने सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया है। तो अब जब मैं कैरेक्टर्स को रिमूव कर दूंगा उसके बाद मेरे को क्या देखना है, उसके बाद मैं सिंपली बस एक इफ एल्स की कंडीशन लगाऊंगा। इफ जो मेरा टैम्प का साइज है, अगर टैम्प का साइज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि मैंने मतलब VIKA का सर्च कर लिया है। तो मैं रिटर्न करूँगा येस, बेसिकली प्रिंट करूँगा येस, रिटर्न करूँगा, अदरवाइज एल्स मैं प्रिंट करूँगा फॉल्स। ओके, फॉल्स बोल दो या फिर नो बोल दो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला। अब इसका एक बार इस वाले टेस्ट केस से भी समझ लेते हैं थोड़ा, जिससे कि ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाला टेस्ट केस मैंने पहले ही लिख रखा है। ओके, सो एक बार इससे इससे भी करके देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। अब देखो, अब सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है VIKA। ये मैं इसका एक ग्रेडी अप्रोच बता रहा हूँ जो कि हम कर सकते हैं, और मैं अभी इसका सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूँ। ओके, सो मैं फर्स्टली क्या बोल रहा था, फर्स्टली मैं इस फर्स्ट कॉलम पे एक आइट्रेटर या फिर कुछ भी बोलो सेट करूँगा, एंड पूरे फर्स्ट कॉलम में सर्च करूँगा। किसके लिए, क्योंकि मेरा पॉइंटर अभी यहाँ पे है, मैं V सर्च करूँगा। अगर मेरे को V मिला तो मैं यहाँ से V कट कर दूंगा, एंड देन इस आइट्रेटर को, एक सेकेंड, इस आइट्रेटर को यहाँ पे सेट कर दूंगा नेक्स्ट कॉलम पे। ओके, अब मैं इसमें क्या सर्च करूँगा, इसमें मेरे को सर्च करना है, क्योंकि अब ये जो मेरा यहाँ पे आ जाएगा,
अब मेरे को सर्च करना है आई के लिए। अगर मेरे को आई मिला इस कॉलम में तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं क्या करूँगा, मैं इसे आगे आ जा अब इस वाले कॉलम पे आ जाऊँगा। अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे आई साफ साफ दिख रहा है कि वो हर आइट्रेशन पे आई है ना, तो मेरे को मैं पूरे कॉलम पे यहाँ पे जाऊँगा और जहाँ पे मेरे को आई मिलेगा मैं वहाँ से उसे यहाँ पे से ऐसे स्ट्रिंग में से कट करूँगा एंड देन इसे मैं आगे बढ़ाऊँगा आइट्रेटर को। इस वाले कॉलम में सर्च करना है। अब मेरे को क्या, अब मेरे को सर्च करना है फॉर के। अब वो बाई चांस के मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसे आगे बढ़ाऊँगा। क्योंकि अब इसमें के मिल गया तो मैं इस के को यहाँ से कट करूँगा एंड देन इस आइट्रेटर को यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा डी वाले पे, सॉरी ये डी वाली रो है, ठीक है। अब मेरे को सर्च करना है ए के लिए। क्या इस वाली कॉलम में ए है? नहीं है। तो मैं पूरा इसमें आइट्रेट करके मैं इस नेक्स्ट कॉलम पे मूव करूँगा एंड देन इसमें मेरे को ए मिल जाएगा और मैं सिंपली ए को भी इस स्ट्रिंग में से कट कर दूंगा एंड देन मैं लास्ट में एकदम चेक कर लूँगा कि अगर स्ट्रिंग का साइज 0 है तो मैं प्रिंट करूँगा येस, प्रिंट करूँगा येस। अदरवाइज मैं अगर मेरा कुछ 0 नहीं हुआ एल्स तो मैं प्रिंट करूँगा नो। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बाकी ये कोड से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बेसिकली मैंने कोड में क्या करा है, देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनपुट लिया एन का एम का एक मैंने इसका स्ट्रिंग का एक एरे बनाया एंड देन मैंने स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया। क्योंकि जावा में एक स्ट्रिंग बिल्डर ज़्यादा मतलब कि प्रेफर होता है क्योंकि इस हमारे पास इसमें डिलीट कैरेक्टर डिलीट करने का भी एक फंक्शन प्रेजेंट है। ओके, सो बेसिकली इसमें मैंने एक बुलियन फ्लैग, अभी बुलियन फ्लैग मत सोचो, बस मैंने क्या करा, एक फॉर लूप आइटरेट किया फ्रॉम 0 टू m एंड एक इसके अंदर अभी फॉर लूप आइटरेट किया फ्रॉम 0 टू n। बेसिकली देखो ये वाला जो मेरा है, ये वाला जो लूप जो फर्स्ट वाला लूप है वो मेरा 0 टू m बेसिकली क्या है, m है इसकी कॉलम। ओके, सो मैं मतलब कॉलम वाइज बार बार आइटरेट करता रहूँगा। देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पहले फर्स्ट में क्या करूँगा, पूरे के पूरे आई पे मूव करूँगा एंड देन हर बार मैं इसे चेंज करता रहूँगा, आगे आगे शिफ्ट करता रहूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले बाहर एक फॉर लूप चलाया आई का मतलब कि m तक एंड देन उसके अंदर एक आइटरेट किया n तक के लिए, ठीक है, जो कि इसकी बार बार रोज को शिफ्ट करता रहेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग मतलब कि स्ट्रिंग में ले लिया इसे और एंड देन मैंने क्या करा, मैंने इसका जो कैरेक्टर एट आई है और मतलब कि str2 का इसका जो कैरेक्टर एट आई है उसे मैंने कंपेयर किया इस स्ट्रिंग बिल्डर के 0th कैरेक्टर के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मैं 0th कैरेक्टर को हर बार कैंसिल करना चाहूँगा, ठीक है। एंड देन अगर किसी कंडीशन में मतलब कि अगर बाई चांस मेरी एक ये एज केस है जो कि मेरा बार बार मतलब उसमें प्रॉब्लम दे रहा था, ये एज केस है कि अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 0 हो जाती है बाई चांस तो मैं उसी टाइम पे इसे लूप को ब्रेक करके बाहर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे केस संभाल लिया कि अगर लास्ट में लिख दिया अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 0 हुई तो मैं येस प्रिंट करूँगा, अदरवाइज मैं नो प्रिंट करूँगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इसकी नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम जो कि बी है उसे भी पोस्ट करने वाला हूँ, अगर आपको वो भी समझना है तो आप उसे भी देख सकते हो। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।